Good morning, student. Good morning, ma'am. Today we are going to start Unit 3 Awareness about Health. आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? Unit 3, ठीक है, जो है Awareness about Health. Awareness about Health मतलब स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो इस यूनिट में हम Good morning, ma'am. पढ़ेंगे रीडिंग ए इंडिया's battle to ban chewing tobacco, और रीडिंग बी द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, एंड रीडिंग सी आयुर्वेद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ए इंडिया's battle to ban chewing tobacco. Yes. Anyone want to read? कोई रीड करना चाहता है? मैम मैं ओके, रीड कीजिए। in September 2010, Madhav Prasad Sharma, a potato and onion with potato and onion vendor for the Eastern Indian state of Bihar was Diagnosed with stage 4-month CNCS censored in Mumbai, where we went for surgery. The central point of his low jaw was removed. Less than 3 years later, the censor removed it when he limited this time as to marble sites, yellowish lamps on the inside of his left cheek when his surgery Pankaj Chaudhary told him पंकज चतुर्वेदी that they only treatment was an treatment was another surgery. another century that the 57 years old man started to Stop. he asked for the Operation operation to be put back operation back a month has his daughter back a month has his daughter was studying for his computer course exam. He didn't want to give her the bad news. Mrs. Sharma, cancer is caused by cancer is caused by CHEWNG chewing KHANI canny, a mixture of TOBACO tobacco and limit that lime
that is popular in Bihar, and his said surgery said his surgeon Mr. Chaturvedi, Chaturvedi, associate professor, head and neck surgeon at TAK Tata Memorial Hospital. Tata Memorial Hospital in Mumbai. Okay, stop. Reading A है India's battle to ban chewing tobacco. इसका मतलब है भारत का संघर्ष तंबाकू चबाने पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with stage 4-month cancer. ये माउथ लिखा हुआ है, वहां पर मंथ आएगा, ठीक है। 4-month cancer in Mumbai, where he went for surgery. The central portion of his lower jaw was removed. वेंडर मीन्स क्या होता है? विक्रेता, बेचने वाला, ठीक है, जो आलू प्याज बेचने वाले होते हैं। एस्टर्न मीन्स पूर्वी, और डायग्नोस्ड मीन्स होता है उसका इलाज करने वाला, निदान करने वाला, ठीक है। तो सितंबर 2010 में महादेव प्रसाद शर्मा, जो कि आलू और प्याज के विक्रेता थे, आलू और प्याज बेचते थे, बिहार के पूर्वी भारतीय राज्य से 4 महीने के कैंसर के उपचार के लिए मुंबई में, उनका जो इलाज था वो मुंबई में होने वाला था। मुंबई में जहां वह सर्जरी के लिए गए थे, उनका जो निचला जबड़े का जो बीच वाला भाग था वो निकाल दिया गया था। मतलब मुंह के नीचे निचले जबड़े का जो भाग था, ठीक है, उसे निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि वहां पर क्या हो गया था? क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। Less than 3 years later, the cancer returned, this time as 2 marble-sized yellowish lumps on the inside of his left cheek. Marble means होता है कंचा, और lump means होता है गांठ, ठीक है। तो 3 साल से भी कम समय के बाद कैंसर उनको फिर से हो गया, इस बार लगभग 2 कंचों के आकार के जैसा। उनके बाएं गाल पर हल्का पीलापन लिए कड़ा गांठ, मतलब एक मांस का पिंड जैसा हो गया था। और when his surgeon Pankaj Chaturvedi told him that the only treatment was another surgery, the 57-year-old man started to sob. जब उनके जो सर्जन थे पंकज चतुर्वेदी ने, उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा केवल एक ही उपचार था कि तुम्हें दोबारा से सर्जरी करानी होगी। तो यह सुनकर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था 57 ईयर ओल्ड का, वो क्या करने लगा? सिसकने लगा। सॉब मीन्स होता है सिसकने लगा, ठीक है। He asked for the operation to be put back a month as his daughter was studying for her computer course exams and he didn't want to give her the bad news. उसने ऑपरेशन को 1 महीने के लिए टालने के लिए कहा, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी, और उसे वह यह बुरी खबर नहीं देना चाहता था, ठीक है। इसलिए उसने 1 महीने के लिए ऑपरेशन को टालने के लिए कहा। Mr. Sharma's cancer is caused by chewing khani, a mixture of tobacco and lime that is popular in Bihar, said his surgeon Mr. Chaturvedi, associate professor and head and neck surgeon at Tata Memorial Hospital in Mumbai. Chewing means क्या होता है? चबाना। Lime means होता है चूना, और associate means होता है कांटेक्ट रखना। तो मिस्टर चतुर्वेदी, जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सिर तथा गले के एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर शर्मा का जो कैंसर था वो किसके वजह से हुआ है? खैनी चबाने के कारण हुआ, ठीक है। खैनी क्या होता है? तंबाकू और चूना का मिक्सचर होता है, जो कि बिहार में
प्रसिद्ध है, बिहार में फेमस है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। आगे around 14% of Indian adults smoke cigarettes and bidis, hand-rolled cigarettes, but nearly 26% use smokeless tobacco, including chewing tobacco, according to the Government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009 to 2010. Adult means होता है वयस्क और सर्वे means होता है उसका सर्वे करना आप लोगों ने सुना है ना, जिसको हम घूमकर अवलोकन करना कहते हैं, ठीक है। तो लगभग 14% जितने भी इंडियन एडल्ट थे वो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, लेकिन लगभग 26% के आसपास स्मोकलेस तंबाकू मतलब धुआं रहित तंबाकू उपयोग करते हैं, उसमें तंबाकू चबाने वाले भी शामिल हैं। और ये जो सर्वे है वो किसने किया है? भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है 2009 और 10 में, ठीक है, जिसके अनुसार बताया गया है कि भारत में 14% एडल्ट सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, लेकिन लगभग 26% के आसपास के लोग स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं और कुछ तंबाकू चबाने वाले भी शामिल हैं। ओके, एनीवन वांट रीड? Yes, ma'am. I will. ओके, Approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smoker or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. After year of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. He launched a campaign called Voice of Tobacco Victim in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. The campaign empower cancer survivors to tell their stories, to influence policy makers and raise awareness among other tobacco users about the damaging effect of tobacco on health. The campaign's greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution, and sale of gutka, a form of chewing tobacco commonly consumed in India. The opportunity to advocate for the gutka ban arose with the Food Safety and Standards Act of 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food product. Gutka is a crushed preparation of tobacco and pan masala, a mixture of areca or betel nut, sugar, spice, and perfume. Under the FSSA, gutka can be स्टॉप, यहीं तक पढ़िए। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। Approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smokers or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. After a year of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added.
अप्रोक्सीमेटली मीन्स मतलब एक अंदाजा लगाना, एक अनुमान, ठीक है। आइदर मीन्स होता है या तो, और डिसाइडेड मीन्स होता है तय करना। तो मिस्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि लगभग 85% लोग माउथ कैंसर से माउथ कैंसर हुआ है जिनका मैं इलाज करता हूँ, या तो वो सिगरेट पीने वाले होते हैं या फिर तो वो तंबाकू चबाने वाले होते हैं। हजारों पेशेंट के सालों उपचार करते रहने के बाद मैंने यह तय किया कि जो पदार्थ जो कि कैंसर के कारण को प्रूव करता है, मतलब जिसके कारण से कैंसर होता है, लोगों को उसका प्रयोग करने से रोकने का कार्य करूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? जो मिस्टर चतुर्वेदी हैं, ठीक है। कौन है मिस्टर चतुर्वेदी, बताइए। मैम डॉक्टर। डॉक्टर है मिस्टर चतुर्वेदी। वो कहते हैं कि जिसके कारण से कैंसर होता है, मैं उसको लोगों को यूज करने से रोकने का काम करूंगा। और जो सर्जन डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा कहा। He launched a campaign called Voice of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. कैंपेन मीन्स होता है अभियान चलाना, ठीक है। और स्ट्रिजेंट मीन्स होता है कठोर कदम उठाना। तो 2008 में भारत में तंबाकू नियंत्रण पर और कठोर कदम उठाने के लिए आवाज उठाई और एक कैंपेन चलाया जो तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज कहलाता है, ठीक है। वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम, इसका मतलब क्या होता है? तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज, ठीक है। ऐसा उस कैंपेन का नाम था जो कि 2008 में चलाया गया था। अभियान कैंसर पीड़ितों को प्रोत्साहित करता है कि अपनी कहानियां योजना बनाने वालों को प्रभावित करने, सुनाने और तंबाकू के स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव के बारे में अन्य तंबाकू उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता फैलाए। मतलब कि जो लोग कैंसर से जूझ चुके हैं, ठीक है, कैंसर पीड़ित जो कैंसर से लड़ चुके हैं, उनको वो कहते हैं कि जो लोग तंबाकू यूज करते हैं अभी भी, उनको अपने बारे में बताइए, अपने से जुड़ी कहानियां बताइए और उस तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में बताइए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया। अब the campaign's greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution, and sale of gutka, a form of chewing tobacco commonly consumed in India. कैंपेन का सबसे बड़ा सक्सेस क्या था? सबसे बड़ी सफलता है गुटखा के निर्माण, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ गुटखा मीन्स गुटखा का निर्माण, उसका स्टोरेज मीन्स उसको इकट्ठा करके रखना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको बांटना, और सेल मतलब उसको बेचना। मतलब इस कैंपेन का सबसे बड़ी सफलता है गुटखा के निर्माण, उसका संग्रह, वितरण और बेचने पर प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना, ठीक है। गुटखा भारत में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली चबाने वाली तंबाकू का एक रूप है। The opportunity to advocate for the gutka ban arose with the Food Safety and Standards Act of 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food product. प्रोहिबिटेड मीन्स होता है रोक लगाना, रोक देना। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है उसमें जो मिला हुआ चीज होता है, जो उसमें कंस्टिट्यूएंट मिले होते हैं, जो अवयव मिला होता है, ठीक है। तो गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वकालत का जो अवसर है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के साथ आगे बढ़ा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने तंबाकू और निकोटीन जैसे अवयव के किसी भी प्रकार के उपयोग पर रोक लगा दी। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. Gutka is a crust preparation of tobacco and pan masala, a mixture of areca or betel nut, sugar, spices and perfume. क्रस्ट मीन्स क्या होता है? दबाना या रौंदना। बिटर नट मीन्स होता है सुपारी, और
यहाँ पर गुटखा जो है, गुटखा पान मसाला और तंबाकू को पीसकर तैयार किया गया एक मिक्सचर होता है। ऐसा मिक्सचर जिसमें सुपारी, शक्कर, मसाले और सुगंध मिला हुआ होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. कोई रीड करेगा? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, रीड करिए। अभिषेक को रीड करने दीजिए। Yes. अंडर द FSSA, रीड कीजिए वहां से। मैम मैं करूं? हाँ अभिषेक, आप रीड कीजिए। मैम मेरा नाम राहुल है। ठीक है, कोई भी हो, रीड करो। Under the FSSA, gutka can be categorized as a food product. Therefore, should not contain substance injuries to health like tobacco. The implementation of the FSSA lies with the health ministry of each state. Voice of Tobacco Victims directed its efforts to have the gutka ban Yes, implemented at the implemented at state implemented at legislatures. state legislatures, and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban gutka, said Mr. Chaturvedi. With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaign and filed public interest litigations in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of gutka illegal. The ban efforts on stopping Indian from chewing tobacco is limited. Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that user can mix from themselves before consumption. According to Mr. But he has drawn. Stop. Yes, ma'am. चलिए अब हम देखते हैं। अंडर द FSSA, गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए फूड प्रोडक्ट एंड देयरफॉर शुड नॉट कंटेन सब्सटेंसेस इंजरियस टू हेल्थ लाइक टोबैको। मतलब FSSA खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत गुटखा को खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है और इसलिए तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों को नहीं मिलाया जाना चाहिए। The implementation of the FSSA lies with the Health Ministry of each state. Voices of Tobacco Victims directed its efforts to have the gutka ban implemented at state legislatures, and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban gutka, said Mr. Chaturvedi. FSSA खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सम्मिलित है। तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज ने अपने प्रयास से राज्य को कानूनी बनाकर गुटखा प्रतिबंध पर काम किया और उसे दिशा प्रदान की और अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश गुटखा पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बना, मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। ठीक है, कौन पहला राज्य बना गुटखा पर बैन लगाने वाला? मध्य प्रदेश। With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns and filed public interest litigations in other state and union territories. लिटिगेशन मीन्स होता है मुकदमाबाजी और टेरिटरीज मीन्स होता है क्षेत्र। ठीक है,
तो अन्य डॉक्टर और कैंसर उत्तरजीवियों के सहयोग से उसने ऐसा ही अभियान फिर से शुरू किया और दूसरे राज्य तथा संगठित क्षेत्रों के लोगों की रुचि से एक मुकदमा दायर किया। इस महीने गुटखा निर्माण और अवैध बिक्री में कर्नाटक भारत का अंतिम राज्य बना। लास्ट राज्य कौन सा था, लास्ट स्टेट कौन सा था गुटखा बिक्री और निर्माण में? कर्नाटक। कर्नाटक। The ban's effort on stopping Indians from chewing tobacco is limited. Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption, according to Mr. Chaturvedi. भारतीयों को तंबाकू चबाने से रोकने का प्रतिबंध प्रभाव जो था वो सीमित है। मिस्टर चतुर्वेदी के अनुसार शुद्ध चबाने वाला तंबाकू और पान मसाला दो अलग अलग पाउच में बेचना अभी भी जारी है, जो उपयोग करने वाला खुद ही उपयोग से पहले मिला लेता है। ठीक है, मतलब जो तंबाकू और पान मसाला होते हैं वो दो अलग अलग पाउच में आते हैं, जिसको जो यूज करता है उसको यूज करने से पहले खुद ही मिला लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आगे का लेसन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Yes, Ma'am, कल Saturday है। Okay, ma'am. क्लास इज Yes, ओवर। ma'am. 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 Thank you, ma'am.